Okay, ladies and gentlemen, now they are doing practice of their public speaking. Of course, they are looking so energetic. Come on. अभी ये प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की। देख रहे हैं। आओ हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देख कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस सर, व्हाट आर यू डूइंग? Public speaking? You are doing public speaking? Yes, Okay, sir. are you preparing with each other? Yes, sir. Okay, come on. Come on. Let's see. Yes, ma'am. What are you doing? Sir, I am practice to public speaking. You are practicing for public speaking. Am I right? Yes, sir. Okay. आपको क्या लगता है? Today you will win? Sir, yes. Today you will win? Yes, sir. Okay. आपको क्या लगता है? आप विन करेंगे आज? Yes, sir. Okay. घर से क्या खा के आई थी? एनर्जी मुझे कुछ खा के आई थी, आज आपको एनर्जी दिखानी है ना? खाना खा के आई थी। खाना खा के आई थी। ओके। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही आराम फरमा रहे हैं, क्यों नहीं? बहुत ही ऐसे आए हैं जैसे कि यस। ओके, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, आपका टॉपिक क्या है वैसे? सर, मेरा टॉपिक है मनी नहीं है ना, इंडिया है सर। इंडिया? यस सर। ओके, व्हाट इज योर टॉपिक? मनी. Okay, so what do you think? Like India, like today is the 5th September and today is Independence Day. So what do you think about our forefathers? उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, क्या किया है, और मतलब हमको उनके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जो हमारे महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। सर, उनका नाम इंग्लिश में बोलना चाहिए? नहीं, you can say. उनका नाम है सर, हम लोग जहाँ तक नहीं है उनका नाम और ऊपर करना चाहिए और उनका खूब प्रचार करना चाहिए। उन पे गर्व है हमें, जो हमें उन्होंने आजाद कराया। ओके। और हमारे देश को आजाद कराया, उनसे हमारी पहचान है। ओके, चलो ठीक है, हम बात करते हैं इनसे। ये 3 सहेलियां दिख रही हैं, कम ऑन। हाँ, कहाँ जा रहे हो? ओके, तो मिस, व्हाट इज योर नेम? My name is Deepti sir. Okay, where are you from? I am from UP. So on which topic you are today you are going to speak? On which topic? Friend. Friend? Okay. Who is your favorite friend? Black. Sorry? Who is your favorite friend? I'm not asking color. Who is your Riya. favorite friend? Sorry? Riya. Riya. Okay. What is your name? My name is Jyoti Paul. Okay, where are you from? UP. Sorry? क्या बोला सर? Where are you from? From UP. You are from UP? Yes, sir. Okay. What is your father name? My father name is Mr. Karachi. In which class do you study? I study 11th class. You study in 11th class? What is your future goal? What you want to be in your future? Yeah. Police officer. Yeah, doctor. Doctor. Sorry, doctor? Okay. You want to be doctor? Yes, sir. Okay. God bless you. All the best. Yes. So, ladies and gentlemen, now I'm going to take some kind of introduction from these people. Okay, everyone, let's see what you are doing. Come on. So, sir, what's your name? My name is Anwar Kumar. Where are you from? I'm from UP. Okay. District Manipur. Okay, what are you doing right now? I'm preparing for competition exam. Competitive exam. So basically it's refers to that you want to be a government officer, you want to get some job in a government sector. Am I right? Yes. Okay. So today is a Independence Day. So what do you think, like this Independence Day we get from our forefathers, and because of our, I mean to say, like what do you think about this thing? Yes, today is very great red letter day. So Okay, red letter day. yes, Come on. India is the most largest space living country, and he's very times gulam under of Britishers. Under of British Empire. Our Okay. Indian freedoms very long times trying to for freedom. So this is proud of our. What do you think, sir? Today we have freedom. Today we can do anything. What do you think? Today we have freedom. Yes. आज हम आजाद हैं. Yes. Of course. I think कुछ चीजों में आजाद हैं. कुछ चीजों में जैसे हम अपने डिसीजन ले सकते हैं. Okay. मतलब एक कंट्री एज अ कंट्री Okay. पहले हम नहीं ले सकते थे, लेकिन आज अगर आप इकोनॉमिकली बात करें, जैसे हमारा जो हमारी डिपेंडेंस है, जो हमारा डोमिनियन है, वो अदर कंट्री पे है. बेसिकली हम जीडीपी या कई ऐसी चीजें हैं जो हम वास्तव में गुलाम हैं. हालांकि वो गुलाम नहीं है, लेकिन हम गुलाम हैं. अगर वो कल का अगर गूगल या एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या कुछ भी कंपनी जो टेक कंपनियां हैं, वो भारत में अगर अपना व्यापार बंद कर दें, तो शायद हम फिर बैकफुट पे जा सकते हैं. Okay, और so इसलिए हमारी जो यूथ है
उन्हें थोड़ा टैग में भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या सिर्फ प्रॉपर पर्टिकुलर जॉब ही नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपना so स्टार्टअप खोलना चाहिए। yeah, simple. We have to understand the thing, the power of skill, and we have to work on skill as well. हमको स्किल पे काम करना चाहिए, हुनर पे काम करना चाहिए, ताकि हम अपना और हमें उस पे काम करना चाहिए जो वास्तव में हमें जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है। क्योंकि सिर्फ देशभक्त वो ही नहीं होता कि जो बॉर्डर पे खड़ा है या जिसने सिर्फ देश के लिए फांसी पे चढ़ा। एक देशभक्त वो भी बन सकता है जो एक साधारण परिवार में रह के देश की चीजों को यूज करे, एक अच्छा नागरिक बने, अपनी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझ के उन्हें सेव करे, सिक्योर रखे। जैसे आज हम यहाँ घूम रहे हैं तो ये हमारी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है यहाँ कुछ कूड़ा करकट ना फैलाएं और किसी भी चीज की ऐसी आपत्तिजनक चीजें ना करें जो कि हम हमारा जो भी हो हमारे जो संसाधन है उनमें थोड़ी भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके सो मतलब हम इस आज़ादी से जो हम अपने फोर फादर्स को रिमेम्बर्स करते हैं तो उसे हम क्या सीख सकते हैं, और उनसे यही सीख सकते हैं कि उनकी जो डिसिप्लिन थी, जो उनका जो काइंड ऑफ जिससे प्यार करते थे वो इंडिया को, उस हिसाब से हम अगर आज करना चाहें, आज अगर करें तो शायद अपनी इंडिया को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आज हमारे पास हर चीज है। Of course, today we have technology and all the things we have. And 1.5 billion population है जो अगर किसी भी सेक्टर में मुड़ जाए I mean to say in India we have we have more than younger than other countries. Youngers की इतनी ज्यादा काइंड ऑफ 70% कह सकते हैं कम से कम अदर कंट्रीज के हमारे यहाँ ज्यादा है जी। यंगर्स ज्यादा, न्यू जनरेशन ज्यादा, तो मतलब न्यू जनरेशन मतलब नया माइंड, नए एनर्जी, नई ताकत, तो हम काफी सारा कर सकते हैं इससे अगर हम सही दिशा में से यूज करें। दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ भारत में है, ऑफ कोर्स है, लेकिन वो यूथ है या ना है वो एक ही चीज है, क्योंकि उसे डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, और कुछ हम कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्शन नहीं मिलने दे रहे हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं। फिर वो गलती हमारी ही आ जाती है, क्योंकि वही लोग हैं जिन्हें हम भेजते हैं वो डायरेक्शन नहीं देना चाहते। कम ऑन यस। तो थिंग इज दैट हमको अपने एजुकेशन पे और जो देश में चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जान पाए कि हाँ हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या गलत है। इसीलिए मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत जरूरी है आज की दुनिया में, ताकि हम जान पाए कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये गलत है। एक्चुअली अगर पूछो गाँव के लोगों से, उनसे पूछो कि आप कहाँ रहते हो, तो उन्हें पता ही नहीं कि वो भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं। तो थिंग इज दैट ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो रहा है, और इसी वजह से हम अपना हक नहीं मांग पाते, जो हमारा हक है एक्चुअली में, गवर्नमेंट से, लोगों से, माता पिता से और सोसाइटी से, क्योंकि उन्हें अपने मूल अधिकार नहीं मालूम जो हमारे संविधान में दिए हैं। पता ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या है, उन्हें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। ओके, दिस इज द मैन, होना चाहिए। आप भले लगे ना लगे, लेकिन आपको संविधान तो पता होना ही चाहिए। ओके एवरीवन, चलो और लोगों से बात करते हैं। डू प्रैक्टिस, कीप डूइंग प्रैक्टिस। ओके एवरीवन, कम ऑन। Okay, ladies and gentlemen. So they are doing practice for their public speaking. Let's see who will win today. Okay.